Hey guys, I welcome you all to yet another lecture on anthropology series. So we are doing chapter 1.5 and everyone who has not watched the introductory video of this chapter, please I'll put down the link in the description box. Please go watch that video first ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग हो. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक even the basic pointers of this chapter. Okay, so let's get started. So now हमने कल बात करी थी what are primates basically and what is the definition and meaning of primates. So today we'll talk about the types of locomotor adaptations in primate. Now why are we reading this? Primates हमारे लिए important क्यों हैं, जैसे हमने कल भी बात करा. If we study okay, just yeah, see, when we are studying anthropology, again and again I've said that in anthropology we try to study humans in terms of time and space. So time and space means what? Time and space means that in anthropology we are trying to read how evolution of humans happened, and evolution not only in cultural way as in how culture developed, institutions like marriage, society, religion came up, but also biological. That is how human as a species, Homo sapiens, evolved from a not so distinct species of from being an ape humans to then उससे भी पहले अगर हम अपने आप को एनिमल किंगडम में अगर अपना एवोल्यूशन ट्रेस करने की कोशिश करें. सो दैट इज़ वाई द चैप्टर प्रिमेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली in the syllabus but also to know the history of humans and how humans eventually evolved as a distinct species from just being one of the primate species. Okay, so that is why we are reading this chapter. Now we had started the meaning and definition of it. Today we will start with the types of locomotion, and I'll pin down the day 9 video for you guys. So now let's get started. Locomotion क्या होता है? The way you walk and run, jump, the way you try to move. Okay, so basically हमारे पास 4 टाइप के locomotive patterns हैं primates में. जो सबसे primitive है या जो सबसे पहले evolve हुआ होगा या सबसे पहला था, that is vertical clinging and leaping. Okay, so now vertical clinging and leaping क्या है? हमने कल भी बात करी थी that in the order primates we have prosimians and we have your anthropoidea, right? So now you will think कि हम इसको बार बार repeat क्यों करें, because I want you guys to learn it here and now, कि आपको बाद में बार बार ये चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको यही याद हो जाए. तो प्रोसीमियंस में हमने बेसिकली 3 कैटेगरी देखी थी, जो क्लासिफिकेशन मैंने अपने चैप्टर में लगाई है. इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी अदर क्लासिफिकेशन इन एनी अदर बुक, बिकॉज क्लासिफिकेशन डिफरेंट उस पर डिफरेंट क्राइटेरिया पे करी गई है, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज एंड यू कैन फॉलो एनी ऑफ द वन क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन जो मैंने लगाई थी. उसमें लेमूर्स, लॉरिसेस और टार्सियर्स प्रोसीमियंस में थे, राइट? सो एंड एंथ्रोपोइडिया में ऑल योर गिबन्स, चिम्प्स एंड मतलब फर्दर इन लेमूर, इन कोलीम्यूरेस्टिडे एंड ऑल ऑफ दैट, वो उसमें आगे सारे आते हैं. ठीक है, sorry, Carpolestidae and other, and then there is Hominoidea. Wait, here it is Hominoidea and all of that. तो इसमें हमारे वो सारे आ जाते हैं, ठीक है ना. सो बेसिकली वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग जो है ये टार्सियर्स और लेमूर्स करते होंगे, ठीक है. दैट इज़ थोड़े से प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्रिमेट्स जो बिफोर लाइक प्रॉपर एप्स से पहले. एंड नेपियर एंड वॉकर कंसिडर्ड दिस टू बी द मोस्ट बेसिक form
which other modes evolved. ठीक है, सो बेसिकली ये सबसे बेसिक, सबसे पहले इवॉल्व हुआ लोकोमोशन होगा, जिससे बाकी बाद के लोकोमोशंस इवॉल्व हुए होंगे. ठीक है, सो नाउ वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट्स फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो. Just imagine this is a branch of a tree. Okay, see how vertically this what primate has, is clinging on to the bark, and see how he's taking a jump to the next. If I have to make this more clearer to you, you can just feel, I'll just draw it here. Let's assume that this is a branch of a tree. Okay, and this is a primate who's trying to like take a jump. My drawing is not that great, guys, so please. So this is how he is trying to take a jump to reach this place. Okay, and when he actually reaches the trunk or a tree, how he clings on is something like, you can just imagine, something like this. Okay, so this is clinging. So clinging is nothing, you are just you are holding on to the tree and आप उसको पकड़ के ऐसे वर्टिकल है ना, वर्टिकली आप रुके हुए हो उसके ऊपर, राइट. तो ऐसे करके आप रुके और ऐसे जंप लेके दे टेक दिस काइंड ऑफ अ जंप टू गो टू द नेक्स्ट ब्रांच. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे stand or wait or stay on a tree, and this is how they move on to the next branch. तो obviously ये arboreal है, तो terrestrial पे तो ऐसा possible नहीं है ना. तो जब हम trees पे jump कर करके जाएंगे तो ये उस type का locomotion है. ठीक है, so now ऐसे के लिए tarsal bone एक bone होती है हमारे feet. It's a bone in the feet. This bone is very small in man but extremely long in tarsiers, which gives spring for leaping. ऐसे jump करने के लिए ये bone extremely important है, और ये tarsiers जो इसमें vertical clinging करते भी हैं उनमें ये extremely long होती है जो उनको help करती है. ठीक है, okay, so now next is quadrupedalism. Quadrupedalism is walking on all your limbs, like 4 of your limbs. You can just very clearly see that he is walking on all 4 limbs, right. So this is terrestrial when you do it on the ground, arboreal when you do it on the trees, and that. ठीक है, so along branches of the trees, lemurs and lorises. Now पीछे कौन थे, lorises और the other one tarsiers. Here lorises and lemurs. So you can see अभी भी ये थोड़े primitive type के ही हैं, और ये ऐसा नहीं है मतलब जो आर्बोरियल है वो प्रिमिटिव है. टेरेस्ट्रियल पे आपके बबून्स, देन एप्स, ऑल ऑफ देम डू टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म ऑन द ग्राउंड. अब जो टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म है ना, उसमें 2 और टाइप हो जाएंगे, जैसे कि नक्कल वॉकिंग एंड पाम एंड फिस्ट वॉकिंग. सो ना व्हाट आर नक्कल्स, जैसे जो हमारे हैंड्स होते हैं ना, उसके उस पे नक्कल्स होते हैं ना जो पिछली साइड पे. When for example this is my hand, I'll try to draw. This looks very bad. Knuckle is when you walk with your folded hands. तो आपके hands पे जो knuckles हैं उससे walk करेंगे. And palm and fist हो गया जब आप अपने palm के through walk करने की कोशिश करेंगे, right? So knuckles पे walk करते हैं chimps. Knuckles पे walk करते हैं chimps and palm पे walk करते हैं orangs. Okay? You can just watch a video of orangs and chimps. You will just see what is the difference. Nothing difficult about this. Quadrupedalism 2 टाइप का होता है. One is arboreal, second is terrestrial. Arboreal जो हो गया trees पे, terrestrial हो गया ground पे. उसमें 2 टाइप के हो गए, knuckle walking and palm and fist walking. Knuckle walking chimps करते हैं, palm and fist walking orangs करते हैं. Okay? Next is brachiation. Now brachiation क्या होता है? ब्रैकिएशन इज फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो ये एक ट्री है, ठीक है, दिस इज ब्रांच ऑफ अ ट्री. सो सी हाउ ऑल्टरनेटिवली ही स्विंगिंग हिज हैंड्स एंड वॉकिंग फॉरवर्ड. सी व्हेन सी
like alternatively he's using his hands na to go on to move further, right? So this is also known as arm swinging locomotion. We can see he is swinging his arms, right? Body is suspended below the branch of the tree and moves by swinging arms alternatively. We have seen that from branch to branch. अब ये कौन करते हैं? गिबॉन्स एंड सियामिंग्स, ठीक है, सियामिंग एंड गिबॉन्स करते हैं. और इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, मॉडिफाइड ब्रैकिएटर्स एंड सेमी ब्रैकिएटर्स. मॉडिफाइड ब्रैकिएटर्स कौन होते हैं? बेसिकली द वर्ड itself explains modified, which means that you know it is just a secondary type of locomotion. उनका primary locomotion ये नहीं है, secondary है. For example अगर हम humans की भी बात करें, even humans can walk if जैसे आपने देखा आर्मी ट्रेनिंग में भी humans को एंड जिम में भी बहुत लोग जब you know ऐसे कुछ लटक रहे होते हैं तो you can walk like this, right? So this is modified brachiation कि मतलब ये हमारा primary locomotion नहीं है, but you know you can move like that. Then semi brachiators हो गए न्यू वर्ल्ड के monkeys, that is जो अमेरिका वगैरह में मिलते हैं. They use their prehensile tails. Okay, I'll just show you the semi brachiation. See, तो basically normal brachiation में हमने क्या देखा? In normal brachiation we saw कि they are swinging their arms, right? Swinging their arms to move. But semi brachiation में क्या है? Semi brachiation में the tail, that which is obviously prehensile tail. Prehensile means जिससे हम grasp कर सकते हैं चीज़ें. Even that is used for staying or moving. See, he is holding two branches with his hands, and also the tail is used. He is also using his tail. So that is semi brachiation. Now this kind of new world monkeys do, which हमको अमेरिका वगैरह में जो मिलते हैं, ठीक है. सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी है. ब्रैकिएशन है, इसको आर्म स्विंगिंग बोलते हैं. मॉडिफाइड ब्रैकिएटर्स हो गए जिनका प्राइमरी मूवमेंट ब्रैकिएशन से नहीं होता है, बट दे डू इट ऑल्सो. एंड सेमी ब्रैकिएटर्स जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ हैं और अपनी टेल्स को भी यूज़ करते हैं, लाइक दिस. सो नाउ आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन the whole this chapter because I want you to make a visual memory of the things, because that way you will remember it for a much longer time. Okay, the last locomotor pattern is bipedalism. So you know, walking on 2 feet, your feet is bipedalism, and this is by far only achieved fully by humans in the primate thing. Okay, so even though the other primates like gorillas and all, they can semi do this bipedalism but not fully. Humans are fully bipedal primates. Okay, so walking and running on the hind limbs, these are the hind limbs and arms are the forelimbs. Okay, so you walk on these. और bipedalism के लिए you know a lot of anatomical changes in the body are required, right? And these anatomical changes in the body has further led to cultural development and further to biological development, because the thing is this is all we are going to read in the next chapter जिसमें हम skulls और different type of fossils की study करेंगे. और eventually जब हम homo sapiens बने, इससे आगे क्या होगा, प्राइमेट से हम जब होमो में आए और आगे क्या होगा. सो ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. लेकिन हम इधर जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ एनाटॉमिकल चेंजेस क्या हुए कि हम बाइपेडल हुए. सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ द लंबर कर्व हमने कल भी पढ़ा था. ओके, presence of the lumbar curve we had read yesterday also, that how it supports our body weight on our feet, right? So this is, just imagine your spinal cord, right? So this is cervical area, this is thorax, this is lumbar, and this is sacral. Okay, so normally you know apes have something like this straight kind of spinal cord. So this helps in putting all your weight onto your feet, and this helps you to do all kind of activities like jumping, running. So
lumbar curve was very important. Second thing is the arched feet. See, I made it very badly, just let me remake it. Arched feet. Yeah, so now human foot is something like, oh, why am I making it so badly? Okay, something like this, and whereas the ape foot is something like this, so he has a flat feet. Okay, we have an arched feet. Okay, which gives us the much required stability. ठीक है, this keeps our feet very stable for bipedal locomotion. And the last thing, and the next thing is, you know, in our femur bone, if you imagine this to be our femur bone, there is presence of linea aspera. This is linea aspera. This is present at the back of our femur bone. This is also very important in bipedal locomotion, which is not found in other primates. Okay, so apart from this, the prehensile nature of our feet, you know, a prehensile nature, prehensile hand, sorry, not feet, prehensile hand. So that has made our hands to be free and use it for other things than locomotion. Then tactile pads on our hand and feet. Tactile pads क्या होते हैं? Basically, you know, when your hands or feet, you can just feel things, right? How hard is the surface, how soft is it? For example, if you touch a pan which is hot, you know, what do? You just try to, you know, touch it with your hand little bit from the tip of your hand. उससे आपको समझ में आ जाता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ठीक है. So all of these things have also given you like grip and, you know, to understand कि, you know, कैसा है, ठीक है. सो अनाटमिकल चेंजेस में हमने क्या देख लिया, बाइपेडलिज्म की कैसे हुआ, बिकॉज लंबर कर्व आ गई, लीनिया एस्पेरा फीमर में हुआ और आर्च्ड फीट हुआ. सो ये 4 टाइप ऑफ लोकोमोशंस हमने देख लिए. दैट इज फर्स्ट वन वाज वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग, क्वाड्रुपेडलिज्म, देन ब्रैकिएशन एंड बाइपेडलिज्म. नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉसिल primates, we will first look at the geological time scale, because after that you will better understand कि हम exactly पढ़ने क्या वाले हैं, right? So basically this geological time scale is going to come very handy for you in the next chapters. So I just want you to take a feel of it from this chapter only, so that बार बार देखो आप कोई चीज़ को, तो you know it creates a better understanding. So now if I zoom this, you can see here, we see, okay, I can't, if I do it like this, you may be able to see this. Yeah, so this is the mass extinctions, then there are eons, then eras, periods and epochs. Okay, so this is how the geological time scale is divided. You know, you can just ignore this part for now and just focus on the era, period and epoch. Okay, so that is mostly important right now. The other part we'll look in the next chapters maybe. Okay, so here you can see this is Paleozoic, then Mesozoic and Cenozoic, right? This is the era. Okay, and this era, in this era, basically today, if I have to, you know, reverse आपको समझाना हो, तो we are in the Holocene epoch. Okay, and the period is Quaternary and the era is Cenozoic. So at least for now you can remember this, that we are in the Holocene epoch, Quaternary era and Cenozoic period. Sorry, Cenozoic era and Quaternary period. Now Quaternary was the period which is the rise of man. So now आप बोलोगे classifications कैसे की गई हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे, if you try to see the time scale which is given over, this is the time scale which is given. So formation of the earth, ठीक है, then earth crust and this, फिर bacteria, algae वगैरह आए, then you know आपके fishes आए, ठीक है, देन आपके अर्लीस्ट लैंड एनिमल्स आए तो उसको सिलूरियन बोल दिया,
ठीक है। देन अगर हम और ऊपर चले जाएं तो इंसेक्ट्स वगैरह आए थे कार्बोनीफेरस पीरियड में, ठीक है। देन रिप्टाइल्स आए पर्मियन पीरियड में, ऐसे ट्राइसिक, फिर आपका डायनासोर वाला जुरासिक वगैरह वो वाला एरा हो गया। टर्शरी एरा वो एरा हुआ जिसमें मैमल्स आए। सो यहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत अगर हम बोलें तो हो जाती है। कहाँ से? टर्शरी पीरियड से। टर्शरी पीरियड भी आपका सीनोजोइक एरा का ही पार्ट है। और अगर हमको एक्चुअली में बोलना है कि एग्जैक्टली ह्यूमन कब दिखा हमें, तो वो क्वार्टरनरी पीरियड में था, ठीक है। अब इस पीरियड को भी इपॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो टर्शरी आपका पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन और मियोसिन है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एंड उसके आगे आपका प्लियोसिन तक हम आज पढ़ लेंगे। देन प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, बिकॉज यहाँ पे राइज ऑफ मैन हो चुका था। एंड इन दिस चैप्टर वी आर ओनली ट्राइंग टू ट्रेस आवर हिस्ट्री टू द अदर मैमल्स और प्राइमेट्स इन द दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, सो दैट इज़ वाई अभी हम सिर्फ अपने फॉसिल प्राइमेट्स को पढ़ेंगे, विच इज़ फ्रॉम पेलियोसिन टू इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड प्लियोसिन। बाकी जो होलोसिन और प्लीस्टोसिन है वो नेक्स्ट चैप्टर्स का पार्ट बनेगा, जब राइज ऑफ मैन टाइप हमें कुछ स्पीशी मिल गया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। एंड वी आर ट्राइंग टू रीड द फॉसिल प्राइमेट्स। फॉसिल प्राइमेट्स क्या हो गए बेसिकली, कि हमारे प्राइमेट्स जो हमको फॉसिल्स को एक्सकेवेट करके जो मिले हैं, ठीक है। सो नाउ यू रिमेंबर दिस टर्शरी पीरियड वी आर स्टार्टिंग विद, दिस टर्शरी पीरियड वी आर स्टार्टिंग विद। ओके, सो in tertiary period mostly only teeth and fragments of jaw skull are found. Obviously this is, you know, very like millions of years ago, right? Not millions but many years back. This is, if we have to see, it is, yes, it is millions, 1.8 million years ago. So that way it is, you know, इतने पुराने स्कल और फॉसिल्स को स्टडी करना, ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो और इतने टाइम तक वो प्रिजर्व भी तो होने चाहिए, तो इतने टाइम के लिए तो ऑब्वियसली नहीं रह पाए होंगे। तो ओनली टीथ एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ जॉ वी फाउंड, एंड उसी की स्टडी है ये। तो सबसे पहले टर्शरी पीरियड में हमने पेलियोसिन को देखा था, और पेलियोसिन में हमको मिडल ऑफ द पेलियोसिन पीरियड में हमको कुछ एविडेंसेस सबसे पहले मिले थे, कुछ स्कल कुछ फॉसिल्स वगैरह के। और कहाँ से मिले थे? नॉर्थ अमेरिका से मिले, फ्रांस से मिले और यूरोप से मिले। कहाँ से मिले? अमेरिका, फ्रांस एंड यूरोप। सो नाउ क्लासिफिकेशन, अगर हमें इस पीरियड के फॉसिल्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो मेजरली 3 वे से कर सकते हैं, कार्पोलेस्टिडे, फिनाकोलेम्यूरिडे एंड प्लेसियाडापीडे। नाउ प्लीज़ forgive me if I pronounce any word wrongly, because मुझे खुद भी इतना इन साइंटिफिक नेम्स की प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता है, बट आई ट्राई टू डू इट एज करेक्टली एज पॉसिबल। इसमें से अगर ये हम 3 क्लासिफिकेशन देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो जिसको वेल स्टडी किया गया, दैट इज़ प्लेसियाडापीडे। आप इतना भी याद रख लोगे तो ठीक है। प्लेसियाडापीडे ये वेल नोन फैमिली है इस पेलियोसिन प्राइमेट्स की। इसमें आपको पूरा फॉसिल स्कल मिला है, ठीक है, एंड कुछ और पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन हमको मिले हैं इस पार्ट से, ठीक है। एंड अगर इस फॉसिल की अगर हम स्टडी करें, जो हमको स्कल और कुछ पार्ट ऑफ द स्केलेटन मिला है, उससे वी कुड जस्ट कॉम्प्रीहेंड कि इसका साइज जो है ना, इट वुड बी रेंजिंग बिटवीन दैट ऑफ अ स्क्विरल टू अ डोमेस्टिक कैट। तो इतना बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। और डेंटल फीचर्स इसके ऑलमोस्ट सिमिलर थे टू अदर प्राइमेट्स जो हमने पढ़े हैं, उन जैसे ही डेंटल फीचर्स थे। सो नाउ आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ इमेजेस इन दीज थिंग्स, तो आपको मैं दिखाती जाऊंगी साथ में। तो ये आप एक तरह से लगा लो कि दिस इज, वेट, दिस इज द पेलियोसिन प्राइमेट और फॉसिल, यू कैन जस्ट सी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ना, छोटा सा है ना, स्क्विरल जैसा लग रहा है, आज के टाइम पे स्क्विरल जैसा लग रहा है, राइट। सो छोटा सा है एंड थोड़ा सा काफ़ी प्रिमिटिव टाइप लग रहा है प्राइमेट, ठीक है ना। सो अभी हम आगे वाले पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे
क्योंकि मैंने हर के साथ पिक्चर लगाई, यू विल सी कि कैसे एवोल्यूशन हुई है. दैट इज़ वाई पुट इन दीज पिक्चर्स फॉर यू टू मेक अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग. सो हमने समझ लिया कहाँ से मिले थे, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप से मिले थे. क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हो सकती है. प्लेसियाडापीडे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कार्पोलेस्टिडे एंड फिनाकोलेम्यूरिडे भी है. ठीक है, इसका साइज स्क्विरल से लेकर डोमेस्टिक कैट तक हो सकता था. डेंटल फीचर्स सिमिलर हैं अदर प्रिमेट्स जैसे. नेक्स्ट इज इयोसीन इपॉक. हमने देखे थे ना इपॉक्स, हमने इपॉक्स देखे थे. उसमें सबसे पहले हमारा था द अदर वन जो हमने इससे पहले पढ़ा, दैट इज पेलियोसीन. देन उसके बाद इयोसीन, देन मियोसीन, लाइक दैट, राइट. ओके, सो नाउ इसमें हमें अगेन लेमूर एंड टार्सियर लाइक प्राइमेट्स मिले. अब यहाँ पे हमें कैसे प्राइमेट्स मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने जो पढ़े थे प्रिमिटिव में प्रोसीमियंस पढ़े थे ना, प्रोसीमियंस में हमने लेमूर टार्सियर देखे थे. तो इस टाइम तक हमें लेमूर टार्सियर लाइक प्राइमेट्स दिखने लग गए थे, क्योंकि अभी हमने जो इससे पहले देखा ये तो उससे भी ज़्यादा प्रिमिटिव है. ठीक है, जिसको हम उस कैटेगरी में भी नहीं डाल रहे. तो अब हमें लेमूर और टार्सियर जैसे मिलने लगे. जोग्राफी कहाँ पे थी, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ एशिया ऑल्सो. सो नाउ एशिया में भी मिलने लगे. अनलाइक पेलियोसीन इपॉक दीज वर ट्रू प्रिमेट्स. तो अभी हमने जो पीछे देखा वो तो कुछ अलग सा ही लग रहा था, यू नो, बट फिर भी ये वाले जो थे ना ये ट्रू प्रिमेट्स थे, लाइक लेमूर्स, टार्सियर्स, लाइक दैट. अब क्या ट्रू प्रिमेट्स थे तो मतलब क्या हुआ कि दे मस्ट हैव हैड लार्जर ब्रेन्स, बिगर आई. ठीक है, देन एनलार्ज्ड ऑर्बिट, मतलब आईज की जो ऑर्बिट्स हैं वो बड़ी हो गई होंगी. रिड्यूस स्नाउट. स्नाउट क्या होती है बेसिकली, अगर हम एक जैसे डॉगी का फेस देखें तो कुछ इस तरह से होता है, राइट. ये मतलब उसका नाक लगा दो, ये आंखें लगा दो, कितना ही फनी डॉग सा लग रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट जो स्नाउट है, मतलब ये उनके मतलब जो नाक वाला एरिया है वो प्रोग्नेथस है, बिकॉज दे रिलाई ऑन देयर ऑल फैक्ट्री सेंसेस. वो स्मेल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, यू नो. बट जब हमें आईज में हमें जब एवोल्यूशन दिखा कि हमको स्टीरियोस्कोपिक आईज मिली, तो यू नो दैट समवेयर रिड्यूस्ड आर डिपेंडेंस ऑन आर स्मेल और ऑन आर ऑल फैक्ट्री सेंसेस. उस पर हमारी जो डिपेंडेंस थी वो कम हो गई, यू नो. सो स्नाउट की जगह पे हमें अब बेटर आईज मिल गई थी, तो ऑब्वियसली स्नाउट रिड्यूस हो गई होगी. देन फोरम एंड मैग्नन फॉरवर्ड एंड फ्रंट ऑफ द स्कल. सो अगर हम इसमें भी देखें, यू नो, एज कम्पेयर टू दिस वन जो जिसमें देखो हेड की पोजीशन किस तरह से है, यू कैन जस्ट सी हेड कैसे अटैच्ड होगा, नेक कैसे वो स्पाइनल कॉर्ड से कैसे अटैच्ड है. वेयर एज अगर हम इसमें देखें, यू नो, थोड़ा सा फॉरवर्डली प्लेस तो लग रहा है ना, अब थोड़ा सा थोड़ी सी इरेक्ट वाली वाइब तो आ रही है, राइट. सो ये हमारे इयोसीन प्राइमेट्स के बारे में था. और अगर इसमें फैमिलीज देखनी हो तो एडापीडे, ओमोमियिडे, टार्सीडे, माइक्रोसियोपिडे जो भी है, दिस इज़ वेरी टफ टू प्रोनाउंस. सो दीज ऑल वी हैड फाउंड. आप ये नहीं भी लिखेंगे, जस्ट अपर पार्ट अगर आप समझ पाएँ और लिख पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, तो दैट इज़ फाइन. देन इज नेक्स्ट इज ओलिगोसीन प्राइमेट्स. ओलिगोसीन वाज द नेक्स्ट पीरियड. ठीक है, इसमें हमें बहुत कम फॉसिल्स मिले हैं, मे बी ड्यू टू द चेंज, क्लाइमेट में चेंज आया होगा, मे बी सॉइल एसिडिक हो गई होगी या कुछ भी हो सकता है, यू नो, उस वजह से हमें ओलिगोसीन में इतने फॉसिल्स नहीं मिले. बट जो मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं मोस्टली, और अफ्रीका में भी अगर हम देखें तो इजिप्ट से बहुत ज़्यादा मिले हैं. ठीक है, अमेरिका, यूरोप से कुछ भी नहीं मिले और अमेरिका से भी बहुत कम मिले हैं. देन इसमें क्या वैरायटीज़ थी, इसमें पैरापिथिकस थे, प्रोप्लियोपिथिकस थे, ओलिगोपिथिकस थे, इजिप्टियोपिथिकस थे. ओके, सो अब ये देख सकते हो, अब ये आज के टाइम पे थोड़ा सा एप जैसा लग रहा है ना. सो नाउ यू कैन सी द एवोल्यूशन, यू नो, फ्रॉम दिस टू दिस टू नाउ दिस इज मच मोर लुकिंग लाइक एन आज का मतलब एप टाइप्स, राइट. सो नाउ पैरापिथिकस जो था ना, जैसे अगर हम इसमें से पैरापिथिकस के बारे में पढ़ें तो इसका हमको लोअर जॉ एंड सम टीथ वी हैड फाउंड, राइट. और ये जो था ना, इसका भी जॉ मतलब छोटा था, साइज ऑफ लाइक अ लिटिल स्क्विरल मंकी जैसे, और डेंटेशन इसका 2-1-2-3 था. सो दिस पिक्चर विच आई पुट हेयर, दिस इज नॉट द पैरापिथिकस,
this is some Oligocene primate only, but I don't think this is the Parapithecus. Okay, so dentition की 2123 थी. Like today modern humans also have this dentition only 2123. So now you can see, you know, अब ये हमारी तरह से होने लग गया. जैसे this is the dentition we have. जैसे कि हमारे क्या होते हैं, we have like incisors, canines, premolars and molars, right? So we follow this only. तो इनका भी डेंटिशन ऐसा ही था. Then shortened muzzle and reduction in premolar. Like पहले जो पुराने वाले जो हमारे ancestor primates थे ना, उनका डेंटिशन स्ट्रक्चर था 2133. सो वी कैन सी कि एक प्रीमोलर यहाँ से हमारे को कम हो गया दिख रहा है 2123. और स्नाउट भी कम हो गई है बिकॉज अब हम इतना ज़्यादा अपने ऑल फैक्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रहे, जब से आईज़ उसके लिए कॉम्पनसेट कर रही हैं. एंड देन इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोसीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स. ये जो भी फॉसिल था या प्रिमेट था ना, ये कुछ इंटरमीडिएट था प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स के बीच में. यानी कि इतना प्रिमिटिव भी नहीं था जितना प्रोसीमियंस थे, और इतना ज़्यादा इवॉल्व भी नहीं था जितने एंथ्रोपॉइड्स थे. ठीक है, सो ये है ओलिगोपिथिकस. नेक्स्ट इज मियोसीन प्लियोसीन. नाउ द मियोसीन प्लियोसीन हम इसको साथ में ही पढ़ लेते हैं बिकॉज इसमें ना कुछ कॉन्टीन्यूटी ऑफ फॉसिल्स देखने को मिलता है एंड कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मतलब लीनिएजेस एक जैसी ही हैं ऑलमोस्ट इस दोनों पीरियड में, तो हम इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं. ठीक है, सो नाउ दिस इज़ वन ऑफ द फॉसिल्स विच इज़ फाउंड इन दिस पीरियड. सो नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा मतलब लाइक ये इरेक्ट भी है अभी, एंड कितना ज़्यादा ये आज के मॉडर्न डे किसी भी आप यू नो उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको. सो इसमें क्या क्या फैमिलीज थी, कैबिडे, सर्कोपिथिसिडे, लॉरिसिडे, ये सब थे. और ये कहाँ से मिले, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका से मिले. ठीक है, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका से. सो अगर हम प्लियोपिथिकस की बात करें, जो इसमें से एक फॉसिल टाइप हमें मिला था, इसका इनकम्प्लीट जॉ मिला था हमको यूरोप से. ठीक है, इनकम्प्लीट you can mostly write in every part that we found a part of incomplete jaw or skull because mostly यही मिला है हर जगह से. ठीक है, सो इनका भी नैरो स्नाउट था. ठीक है, वाइड सेट आइज थी एंड ये थोड़ा गिबॉन लाइक था. ठीक है, इन इट्स बॉडी प्रोपोर्शंस, लिम्ब स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड, ये थोड़ा गिबॉन जैसे था. ठीक है, और अगर ईस्ट अफ्रीका में देखें तो हमको लिम्नोपिथिकस मिला एंड एपीप्लियोपिथिकस मिला. येस गाइज, आई नो दिस इज़ अ लॉट टू रिमेंबर, याद करना पड़ेगा, बट अगर आप एक स्टोरी टाइप अपने दिमाग में बनाओ कि कैसे कैसे हमने इनको इवॉल्व होते देखा फ्रॉम बीइंग दिस प्रिमिटिव टू बीइंग लाइक दिस टू बीइंग लाइक दिस, आप थोड़ा थोड़ा रिमेंबर कर पाओगे. इतना ज़्यादा नहीं भी लिख पाओ. दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. आपको अपने दिमाग में बस एक पिक्चर बिठा के अपने हिसाब से यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वे. सो इसी पीरियड का एक बहुत जो ये पिक्चर भी है, दिस पिक्चर इज़ ऑफ अ ड्रायोपिथिकस, जो हम इस पीरियड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल है, जिससे जिससे हम अपनी ह्यूमन एंसेस्ट्री को भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वी मस्ट हैव कम फ्रॉम दिस ड्रायोपिथिकस ओनली. सो लेट्स रीड अबाउट इट. Dryopithecus believed to be common ancestor of living anthropoid apes and man. Okay, then slight modification was required to produce human characters. इसमें हमको slight ही modification की ज़रूरत थी कि हमें कुछ human type characters मिल जाएं. So Hellman ने क्या बोला? He believed that these primates were on a distinctly infra-human grade of evolution. कि मतलब अभी कहीं ना कहीं we had reached that moment कि हमको with slight modification we could reach that human evolution का thing, right? So the teeth and jaw bones from Europe and Shivalik Hills, हमको इसके जो शिवालिक हिल्स जो हमारे हिमालयाज़ का पार्ट है उसमें से हम मिले, जो हम पढ़ेंगे पेपर 2 में, जिसको हम रामापिथिकस बोल रहे हैं, रामापिथिकस और ब्रह्मापिथिकस. ठीक है, ब्रह्मापिथिकस, ऑल ऑफ दैट हमने उनको नेम किया था. ठीक है ना,
और इसी के एक टाइप का केन्या में भी मिला था जिसको हमने केन्या पिथिकस बोला था, ठीक है। उसको हमने बोला कि रामा पिथिकस का थोड़ा अफ्रीकन टाइप का वर्जन, ठीक है। सो यूरोप से मिले, शिवालिक हिल्स से मिले ड्रायोपिथिकस के रिमेन्स, एंड बाद में चाइना, अफ्रीका, हर जगह से मिले ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हमारा जो, अगर हम, मैं ऐसे करके अगर हमारा एक दांत ड्रॉ करूं, ये इमेजिन करो हमारे पीछे के जो मोलर्स हैं वो है, तो इसमें ना एक कुछ ऐसे करके ना, ऐसे करके एक हमारा वाई पैटर्न बनता है हमारे मोलर टीथ में। तो ये इनके टाइम पे भी आ गया था, तो ये आज भी हमारे मतलब दांतों में ऐसे ही बनता है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक जो Y5 का था ना, कि जैसे Y और ये जो बनता था ना मोलर टीथ में, ये आ गया था इनमें, ठीक है। तो इसको इसीलिए लाइकली एंसेस्टर बोला गया मॉडर्न गोरिल्ला एंड चिम्पा, क्योंकि इवेंचुअली वी चेंज्ड इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, हम ड्रायोपिथिकस लाइन से भी अलग हो गए, राइट। सो ये हम अगले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ड्रायोपिथिकस के बारे में हम अगले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। सो ड्रायोपिथिकस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल। इसको कॉमन एंसेस्टर बोला गया एंथ्रोपॉइड एप्स एंड मैन का। बाद में इवेंचुअली मैन ने अपनी लाइन अलग कर ली थी, बट इसको इंफ्रा ह्यूमन ग्रेड ऑफ एवोल्यूशन पे भी बोला गया कि मतलब ओनली स्लाइट चेंजेस हेयर एंड देयर वर रिक्वायर्ड, और हम उससे ह्यूमन के जैसा कुछ क्रीचर इवॉल्व कर सकते थे। इसके रिमेन्स हमको यूरोप से मिले, शिवालिक हिल्स से मिले। शिवालिक हिल्स में रामा पिथिकस टाइप जिनको हमने नेम किया वो मिले थे, एंड इनको हमने इनके मोलर में भी कैरेक्टरिस्टिक Y5 पैटर्न मिलता है, राइट। सो द लास्ट इज ऑल्सो, एक और जो हमें इस पीरियड से मिले थे, दैट इज प्रोकुंसुल अफ्रीका, युगांडा और केन्या से मिले, और लीके ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। और इसके 3 स्पीशीज़ हैं, प्रोकुंसुल अफ्रीकनस, प्रोकुंसुल मेजर एंड प्रोकुंसुल नियांजे। और इसको प्रोकुंसुल को अफ्रीकन वेराइटी ऑफ ड्रायोपिथिकस भी बोला गया, ठीक है। और इसको पॉन्जिडे का लाइकली एंसेस्टर बोला गया, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी, आई नो, वेरी वेरी मतलब like hard to learn and understand, but you need to listen to the video once more, and I'm sure you will able to understand at least 70 to 80% of it. तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो you will understand it, इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। This is a tough topic and please try to understand. हम एक और लेक्चर करेंगे and we'll try to finish this chapter. So guys, please like, share and subscribe. Any doubts you can pin down in the comment section below. I will happy to answer you all. Thank you.